Hello students, today we will read about the after February. In the February we had studied that monarchy has fallen down and Petrograd has the democracy. So after February we will read about it. What happened after February? Army officials, landowners and industrialists were influential in the provisional government, but the liberals as well as socialists among them worked towards an elected government. Restrictions on public meetings and associations were removed. Soviets like the Petrograd Soviet were set up everywhere, though no common system of election was followed. In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. He and the Bolshevik had opposed the war since 1914. Now he felt it was time for Soviets to take over power. He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants, and bank be nationalized. These three demands were Lenin's April's thesis. He also argued that the Bolshevik Party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. Most others in the Bolshevik Party were initially surprised by the April thesis. They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported. But the developments of the subsequent months changed their attitude. अब रशिया में जब मोनार्की समाप्त कर दी गई फरवरी 1917 में, तो जो अंदर की जो गवर्नमेंट्स थी, जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियल थे, इन्होंने क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट को इन्होंने बना लिया था। और इनमें बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि जो गवर्नमेंट थी वो जल्दी से जल्दी चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो जो उदारवादी नेता है और समाजवादी नेता है उनके द्वारा बना ली जाए। अब जो वहां पर जो पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस पर बैन लगा हुआ था वो समाप्त कर दिया गया। इसी तर्ज पर जिस तरह की पेट्रोग्राद में सोवियत बनाई गई थी, उसी को देख करके बाकी जो दूसरी स्थान थे उन्होंने भी अपनी अपनी वहां पर सोवियतें बना ली। उसी के जैसी सोवियतें उन्होंने भी बना ली। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के जो निर्वासित नेता थे वो व्लादिमीर लेनिन वो रूस लौट कर आए और लेनिन के नेतृत्व में ही बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का जो उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि जो सोवियत जो हैं वो उनको अपने हाथों में जो गवर्नमेंट है, जो सत्ता है, उसे ले लेना चाहिए। फिर लेनिन ने बयान दे दिया कि जो युद्ध है वो समाप्त किया जाए, सारी जमीनें किसानों को वापस कर दी जाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो ये तीन मांगे लेनिन ने अपने जो थीसिस वो उन्होंने पेश की उसमें रखी और उनके इन थीसिस पर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जो रेडिकल जो एम्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको भी स्पष्ट किया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर उनको रख दिया जाए। रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। तो बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोगों को यह सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि समाजवादी क्रांति के लिए अभी सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल में जो गवर्नमेंट है उसे ही समर्थन दे देना चाहिए। लेकिन कुछ महीने की जो घटनाएं हुई पिछले कुछ महीनों में, जब रशिया में जो घटनाएं हुई उसने उनकी सोच को बदल दिया। Through the summer, the workers' movement spread. In industrial areas, factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. Trade unions grew in numbers. Soldiers' committees were formed in the army. In June, about 500 Soviets sent representatives to an all-Russian Congress of Soviets. As the provisional government saw its power reduce and Bolshevik influence grow, it decided to take stern measures against the spreading discontent. It
resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. Popular demonstrations staged by the Bolsheviks in July 1917 were sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. गर्मियों में जो मजदूर आंदोलन था वो और अधिक फैल गया। जो इंडस्ट्रियल जो एरियाज थे वहां पर फैक्ट्री की कमेटियां बना दी गईं और इन कमेटियों के माध्यम से जो मजदूर फैक्ट्री को चलाने में हेल्प करते थे, उस पर काम करते थे, वो उनके तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगे कि ये इस तरह से नहीं, ऐसे चलना चाहिए, हमको ये सुविधाएं मिलना चाहिए। ट्रेड यूनियन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सेना में जो सिपाही होते थे, सोल्जर्स होते थे, उन्होंने भी अपनी समितियां बनानी शुरू कर दी। इस तरह से जून में लगभग 500 सोवियत्स ने जो था वो जो रशियन कांग्रेस थी उसमें लगभग 500 सोवियत्स जो थे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर भेजा। जैसे जैसे जो ये अपनी गवर्नमेंट जो थी प्रेजेंट की उस वक्त की, उसकी ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव भी बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए बहुत कड़े कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्री में जो मजदूरों के द्वारा की जा रही कोशिश थी उनको रोकने के लिए उनके जो नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और जो प्रदर्शन उन्होंने किया उसको दबाने के लिए उन्होंने बहुत क्रूरता से उन्होंने उसको दबाया है और जो बोल्शेविक के जो नेता थे उनको या तो छिपना पड़ा या फिर वहां से भागना पड़ा। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. Land committees were formed to handle this. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917। तो गांवों में और किसान और उनके जो नेता थे उन्होंने दबाव, उनके पुनर्वितरण के लिए उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब कि उनको जमीनें पुनः दे दी जाए, इसके लिए दबाव डालने उन्होंने शुरू कर दिए। इसके बाद इस काम के लिए लैंड कमेटीज भी बना दी गई। फिर जुलाई से सितंबर के बीच में बहुत सारी जो रेवोल्यूशन हो रहे थे, जो क्रांतियां हो रही थी, सामाजिक क्रांतियां हो रही थी, उनसे प्रेरित होकर के जो किसान थे उन्होंने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। You can see this picture, the July days, a pro-Bolshevik demonstration on 17 July 1917 being fired upon by the army। देख सकते हैं आपकी जो इनकी वहां पर मीटिंग हो रही थी उस पर वो जो आर्मी थी उन्होंने किस तरह से फायर कर दिया था। तो आपने देखा कि पहले जार का शासन था, जब जार के शासन को मोनार्की को हटाया गया तो मिलिट्री कमांडर्स ने वहां पर एडवाइस करके जार को हटवाया और फिर अपना ही उन्होंने शासन लगा लिया, अपना ही राज करने लगे। और जब मिलिट्री का शासन स्थापित हो गया तो धीरे धीरे जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली और फिर वो इस तरह से काम करने लगे। लेकिन आम जनता की भलाई कहीं पर भी नहीं हो पा रही थी।